Hello student, now we are here for class 4, chapter 1 part 2. Name of the chapter is Input Processing and Output Devices for the Computer. In the previous class, we have learned about the computer system, means what is computer, types of computer devices. The first type was input devices, in which we have learned about keyboard, mouse, microphone, joystick, scanner, touchpad, light pen, digital camera, web camera. Keyboard, through which we give input to the computer by typing, by pressing the key of the keyboard. Then mouse is a pointing device. It is used for selecting or giving the instruction. Microphone, it is also an input device which record our voice, means our original voice into the computer system. Then joystick, it is a gaming tool through which we give the command to our gaming software or in the game. Scanner help us to convert our hard copy into soft copy, means it can store the image and scan the image and store in our computer system. Touchpad is like a mouse. In computer system we use mouse, but we will see in laptop there is a space for mouse which controls the cursor of the mouse is touchpad, through which we give the pointing instruction as we give it mouse. Then light pen. It is also an input device. It is used for pointing and drawing. Artists use and architecture use this pen for designing. Then digital camera. Digital camera is a camera which we use for capturing image. Nowadays digital camera is in fashion. Web camera is used for video conferencing, or we can say it is like video calling. We use web camera. In the mobile we use front camera, but in our computer system front camera is like a web camera. Then after that we have studied about processing devices. What are the processing devices? Central processing unit, which is also known as brain of our computer system. Central processing unit have three parts: arithmetic and logical unit, control unit, and memory unit. Control unit receives the input from the input device. Then it will decide to which unit it has to transfer the instruction, means arithmetic unit or logical unit. Arithmetic unit only do the arithmetic operation like plus, minus, multiplication, division, and modulus, percentage. These are the instruction for arithmetic unit. And logic unit is the unit in which the instruction is given on the basis of some logic. Then after getting the result, control unit use the memory unit to store the result, or it can send it to the output unit for instant result. So these were the topic which we covered in our previous class. I hope you watch the video more than 2 times and understand what I have explained to you. Makes a note. And now we will come to the today's topic. Today we will learn about the remaining devices. The remaining devices is third device is output devices, in which monitor is there. Monitor is used to display the result. There are three types of monitor: CRT monitor. CRT, full form of CRT is cathode ray tube.
CRT is cathode ray tube. The second is LCD monitor. LCD, the full form is liquid crystal display. Okay. Now the third is LED monitor. Full form of LED monitor. This is the latest version of monitor. And full form is light emitting diode. These are the full form of our three types of monitor. Then we will learn about speaker. What is a speaker? Plotter, printer. There are three types of printer. There are many types of printer, but basically we will study about three types: dot matrix printer, inkjet printer, laser printer. After that, the fourth part of devices is the storage device. Means where we store the result which the computer give us after completing the task. We store the result in memory. There are two types of memory. First is primary memory. Without this memory, computer not able to perform the task or store anything. Then primary memory is of two types. One is RAM, the other is ROM. RAM is random access memory, and the other is ROM, which is read only memory. Random access memory means RAM is temporary, means we can store it for a short period of time. When the power is off, it gets erased or clear. But ROM is permanent memory. It will not get erased when the power is off. So we will study about these topics today. Let us start with the chapter. Write it down, the full form of the monitors and RAM and ROM. First is output device. Output devices shows the result of work done by the computer. The most commonly used output devices are monitor and printer. Means जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या करता है, हमारे रिजल्ट को शो करता है। जब हमने इनपुट दिया फिर उसके बाद क्या प्रोसेसिंग हुआ, उसमें प्रोसेसिंग के बाद जो ये प्रोसेस रिजल्ट कहाँ जाएगा, वो कहाँ शो करेगा, आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, हम इसको आईपीओ भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस, बहुत कॉमन आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर। Come on to monitor. It shows the work being done by the computer. वो हमारे सॉफ्ट कॉपी मीन्स कि वो शो करता है कि हमने क्या क्या इनपुट दिया, क्या उस पे प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करने के बाद उसका क्या रिजल्ट आया।
The output that we get on a monitor is called soft copy. हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दो डॉक्यूमेंट होते हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। जो हम कंप्यूटर पे देखते हैं जिसको टच नहीं कर सकते वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी क्या होता है, जो प्रिंटेड मैटर, जैसे ये हमारा हार्ड कॉपी है, बट इसी का जो पीडीएफ फॉर्मेट हमारे कंप्यूटर पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, बस उसको टच नहीं कर सकते, वो क्या होता है, हमारा सॉफ्ट कॉपी। There are three types of monitor: CRT monitor, LCD monitor, and LED. CRT, LCD, and LED. There are three types of monitors. CRT monitor are generally less expensive but consume more electricity. CRT monitor जो पहले टीवी आती थी बड़ी जिसमें पिक्चर ट्यूब होता था, वो क्या था, हमारा CRT मॉनिटर, और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा कंज्यूम होती है एज कंपेयर टू LCD एंड LED। और वो इन दोनों मॉनिटर से सस्ते होते थे। Both CRT and LCD monitor produce sharp images, but LCD monitor have the advantage of being much thinner, lighter, and consume less electricity. दोनों में CRT और LCD दोनों की इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, बट LCD क्या था, ये CRT से पतला था, हल्का था, और इजीली उसको हम एक कहीं भी ले जा सकते थे, और इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम कम करता था एज कंपेयर टू CRT मॉनिटर। The third type of monitor are LED monitor. These monitors look more or less same as LCD. ये दोनों मॉनिटर LCD और LED वो देखने में सेम होते हैं। These monitor look more or less same as LCD monitor. These have better picture quality and are much in demand than LCD. LED monitor की पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी है LCD से, और इसकी डिमांड ज्यादा है इस टाइम। Then speaker. Speaker are the output devices used to listen to music and sound effect from the computer. Speaker क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, और इसके थ्रू हम जो कंप्यूटर में म्यूजिक बजाते हैं उसको सुनते हैं, और उसमें कई सारे साउंड इफेक्ट होते हैं, उनको भी सुनते हैं। They can be built into the system unit or connect with cable to CPU. या तो ये हम सिस्टम यूनिट CPU में इनबिल्ट करा दें, या फिर हम केबल के थ्रू इसको कनेक्ट करके म्यूजिक सुनते हैं। Then the next is plotter. Plotter is used to take large printout of drawing on paper sheet. Plotter क्या होता है, जैसे प्रिंटर होता है ये छोटा सा होता है, बट प्लॉटर क्या होता है, वो रूम के साइज का होता है। जो रोड साइड में या बड़े-बड़े जो बैनर्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, प्लॉटर से बनते हैं। जो फ्लैक्सेस बनते हैं वो प्लॉटर से बनते हैं, और ये बहुत बड़े साइज होता है एज कंपेयर टू प्रिंटर। The next is printer. It helps you to take the output of on the paper. ये क्या करता है, आउटपुट को पेपर पे प्रिंट कराता है। मींस यहाँ जो हार्ड कॉपी आती है वो किससे आती है, प्रिंटर से, और सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर पर शो होती है। It helps you to take the output on the paper. The printed copy is called the hard copy. जो प्रिंटेड कॉपी होती है डॉक्यूमेंट की उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। The most commonly used printers are dot matrix, inkjet and laser printer. जो कॉमनली यूज प्रिंटर ज्यादातर यूज करते हैं वो कौन-कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर।
The dot matrix printer work like a typewriter. Dot matrix printer typewriter की तरह वर्क करता है and create the impression by striking on the paper. और जैसे हमारा टाइपराइटर वहां पे हिट करता हर एक लेटर को as it is, ये डॉट मैट्रिक्स भी पेपर पे हिट करके इमेज बनाता है. It is very noisy and do not produce high quality output. ये आवाज बहुत करता है और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं होती है. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर नॉट सो कॉमन नाउडेज. ये ऑब्सोलीट हो चुका, मतलब ये पुराना हो चुका है, बहुत रेयरली कुछ ही जगह इसको यूज किया जाता है. They give output only in black and white. इसमें केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता था, कोई कलर प्रिंटिंग नहीं होती थी. The inkjet printer sprays droplet of ink on paper to form the text and graphics. मतलब ये स्प्रे करता था इंक का, जिसके थ्रू इमेज और टेक्स्ट बनता था. It is ideal for routine business work and personal document. ये बहुत अच्छा था रूटीन बिजनेस वर्क, मतलब ऑफिसेज में और पर्सनल यूज के लिए भी इंकजेट प्रिंटर अच्छा है. It can give output both in black and white and color. ये black and white प्लस कलर दोनों फॉर्म में या दोनों कॉम्बिनेशन में क्या करता है, इमेजेस प्रिंट करता है, ये टेक्स्ट ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है. It produces high quality print when used with special paper. और इसका अगर स्पेशल पेपर जैसे फोटोजेनिक पेपर या शाइनी पेपर अगर हम लेते हैं तो इसके जो इमेजेस जो इसके थ्रू प्रिंट किया हुआ इमेज है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये प्रिंट करता है. Then third is the laser printer uses laser beam and dry ink to print. लेजर प्रिंटर क्या करता है, लेजर बीम के थ्रू ड्राई इंक, सूखी हुई पाउडर वाली इंक होती है, उसके थ्रू वो क्या करता है, वहां पे पेपर पे प्रिंट करता है. इट इज यूज्ड मेनली इन पब्लिशिंग हाउसेस. जो पब्लिशर होते हैं जो बुक बना के छापते हैं उनके जहां या फिर पब्लिशिंग हाउसेस जहां पे कार्ड छपते हैं वो ये सारा यूज करते हैं. It print very fast and give high quality output. ये हाई क्वालिटी अच्छा आउटपुट देते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, प्लस इसकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होती है. It work like a photocopier. ये जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है उसके उसी की तरह ये वर्क करता है, इतना फास्ट वर्क करता है as compared to these printers. The laser printer costs more than inkjet printer. Inkjet printer से ज्यादा इसकी कॉस्ट आती है लेजर प्रिंटर की. Then come on to the next topic, that is storage device. आउटपुट हमने निकाला, अब इसको स्टोर कहां करेंगे, या तो मॉनिटर पे देख लें और उसके बाद उसको क्लियर करते हैं. बट हमें फ्यूचर पर्पस के लिए उसको सेव करना है, तो हम क्या किस चीज से सेव करेंगे. हमारे पास कंप्यूटर है बट उसमें जब तक मेमोरी नहीं होगी हम कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी फाइल स्टोर नहीं कर सकते हैं, कोई भी रिजल्ट स्टोर नहीं कर सकते हैं. तो मेमोरी हमारे पास कितनी तरह की होती है, दो तरह की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो एक्सटर्नली हम उसको लगाते हैं ताकि हम उस पर अपने डॉक्यूमेंट जो लार्ज डेटा फाइल्स होते हैं, पिक्चर मूवी और गेम्स, ये सारी चीजें हम सेव कर सकते हैं. प्राइमरी मेमोरी में
कौन कौन सी मेमोरी आती है? रैम एंड रोम। रैम मेमोरी क्या करता है, बहुत फास्ट मेमोरी होता है, बट इसमें जो स्टोर किया जाता है वो टाइम टू टाइम डिलीट होता रहता है। मतलब अगर पावर सप्लाई कट हो गया, सिस्टम हमारा ऑफ हो गया, तो रैम क्लियर हो जाएगा। बट रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम कोई भी चीज एडिट नहीं कर सकते। ये बाय मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब कंप्यूटर बनता है, जब उसका मदरबोर्ड बनता है, उसी टाइम पे इसको बना के इसमें लगाया जाता है, और लगाने के बाद फिर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हमने इसमें कोई चेंजेस किया तो हमारे कंप्यूटर का पूरा बायोस सेटिंग, जो उसका इंटरनल सेटिंग होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग, हर चीज उसमें होता है, वो सारी चीज क्या होती है, खराब हो जाती है और हमारा मदरबोर्ड खराब हो जाता है। तो ये क्या है, ये परमानेंट मेमोरी है। वी कांट चेंज एनीथिंग इन दिस मेमोरी। Then second memory, which is hard disk, CD और पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं मेमोरी स्टोरेज, उसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, जो इस टाइम पे पहले स्टार्टिंग में 60 GB, 120 GB, 150 GB, 260 GB, 250 GB, बहुत सारे रेंजेस में आता था। इस टाइम वो मिनिमम 500 GB और 1 TB टेराबाइट देते हैं। सीडी, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, जो सीडी यूज करते हैं हम मूवी देखने में, उसी बात यहाँ पे हो रही है। उसको हम कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट स्टोर करने में भी यूज करते हैं। और एक होता है डीवीडी, और एक क्या होता है, ब्लू रे डिस्क। ये सारी डिवाइसेस हैं, डिस्क हैं, जिसपे हम डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं। और पेन ड्राइव ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, मतलब हमारे कंप्यूटर में लगाया, स्टोर किया और निकाल दिया। इसमें कोई भी बर्न करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब इजीली हम इस पे कोई भी कॉपी पेस्ट करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, लेकिन हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देन स्टोरेज डिवाइसेस, the devices are used to store data and information। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, डेटा स्टोर और इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट जो है वो बहुत ही कोर पार्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। Now let us learn about storage device. First is memory. The data and instruction that are entered into the computer system through input unit are to be stored inside the computer. The data and instruction that are entered into the computer system, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होता है, चाहे वो डेटा हो चाहे इंस्ट्रक्शन हो, वो क्या होता है, हमारे स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर में स्टोर होता है। दिस स्टोरेज मीडिया इज नोन एज मेमोरी। और इस मीडिया को या इस डिवाइस को क्या कहते हैं, मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। दो तरह की कंप्यूटर मेमोरी है। पहला कौन सा है, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। Primary memory, it is a main memory of computer. It is present on the motherboard. Primary memory is of two types, RAM and ROM. Primary memory, main memory होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, वो दो तरह की होती है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे मदरबोर्ड में। दो तरह की मेमोरी कौन कौन सी है, RAM एंड ROM। RAM, random access memory. It is used for holding data temporarily while computer is working। मतलब ये ऐसी मेमोरी है जो डेटा को होल्ड करती है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कुछ देर के लिए, ताकि जो कंप्यूटर वर्क कर रहा है, जो उसका सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। Its data gets erased when the computer is switched off।
डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो। दूसरा क्या है, रॉम, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन कंपनी देती है, जब मदरबोर्ड बनता है उस टाइम जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो इसमें स्टोर होता है। इट इज परमानेंट मेमोरी, और ये क्या है, परमानेंट मेमोरी। मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड present inside the CPU box. The CPU and other internal part of computer are attached to it. Motherboard क्या होता है, जो मेन बोर्ड होता है, जो मेन सर्किटरी बोर्ड है जिसमें पूरी सर्किट बनी होती है सीपीयू की, तो वो क्या होता है, मदरबोर्ड। और उसमें सारे इंटरनल डिवाइसेस या फिर इंटरनल कंपोनेंट्स, इंटरनल पार्ट जो होते हैं, वो सारी कैपेसिटर है, फैन है, प्रोसेसर है, वो सब उस पे इनबिल्ट होते हैं या उससे अटैच होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, मतलब फिर वो जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक इरेज नहीं कर सकते उसमें से। Its data is not erased even when the computer is switched off. अगर हम कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया और किसी डॉक्यूमेंट को हमने हार्ड डिस्क में सेव कर दिया, पेन ड्राइव में सेव किया या सीडी में सेव किया है, और उसके बाद हमने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया, तो वो जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा, वो इरेज नहीं होगा। Some commonly used secondary storage devices are hard disk, compact disk and pen drive. ये commonly used secondary memory है, कौन कौन सी, हार्ड डिस्क, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी और ब्लू-रे डिस्क, ये सारी क्या है, डिवाइसेस। हार्ड डिस्क वाज इन्वेंटेड बाय आईबीएम टीम लीडर बाय रे जॉनसन। हार्ड डिस्क किसने बनाई थी, आईबीएम के टीम लीडर जो थे रे जॉनसन। क्या नाम था उनका, रे जॉनसन। इन्होंने क्या बनाया था, हार्ड डिस्क ड्राइव। ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ डिस्क ड्राइव, और इनको फादर ऑफ डिस्क ड्राइव बोलते हैं। रे जॉनसन आईबीएम के टीम लीडर, इन्होंने क्या किया था, डिस्क बनाया था, हार्ड डिस्क, और इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ डिस्क ड्राइव। सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट आउटपुट डिवाइस, in which we have learned about monitor. There are three types of monitor: CRT monitor, LCD monitor, LED monitor. Then speaker plays the sound which we store in our computer system, or music or sound effect which we play in our computer system. Plotter is used for large image, मतलब फ्लैक्स और पोस्टर्स जो बनते हैं वो प्लॉटर पे बनते हैं। प्रिंटर स्मॉल डिवाइस है जो कि हमारे हार्ड कॉपी को प्रिंट करता ऑन पेपर। फिर there are three types of commonly used printer: dot matrix, inkjet और laser. Then storage devices कौन सी, पहले मेमोरी टू टाइप्स की है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप्स हैं, रैम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी है, हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव। फादर ऑफ डिस्क ड्राइव कौन है, ये रे जॉनसन, जो कि क्या थे, टीम लीडर ऑफ आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म, ये कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस
machine. ये कंपनी है, इसी के जो टीम लीडर थे रेजॉन्स, उन्होंने हार्ड डिस्क ड्राइव बनाई. दिस इज ऑल फॉर टुडे. Chapter 1 is completed. Please purchase the book because in the next class we will do the exercises and question answer. So we need book to fill it. And the work you have to do in your notebook. So watch the video 2 to 3 times to understand. And if there is again any confusion, please share it on the WhatsApp group of your respective classes. Thank you.